So hello everyone, welcome back to this channel, and today we are going to deal with a very important topic, that is how to cover schemes for NABARD 2025. This will include ESI sections and ARD section. Now this is one of the most asked question, how to cover schemes, what part of schemes are important, will I cover schemes, and how we are going to cover scheme, what is the strategy for schemes, etc. So today we are going to see how will we cover schemes and some strategy. We will also see some previous year questions of how schemes can be covered really well. So let's start with today's session, and if you like the session, please like, share and comment, and you can also join our Telegram channel for any doubt. You can join our discussion channel for any doubt, and also you can ask in the comment section. So let us start with how we will cover schemes, and first we will see how NABARD asks questions from schemes. So there are different exams, and हर एग्जाम का एक different purpose होता है, एक different तरीका होता है to ask schemes. For example, if you are appearing in UPSC exam, UPSC has a different style of approaching schemes questions, a different pattern of asking schemes questions. But here specifically we are talking about NABARD, and how NABARD asks question from schemes is some specific चीज़ें जो NABARD पूछता है scheme से related. First of all, some questions are direct, or NABARD will ask कि which ministry इम्प्लीमेंट्स XYZ स्कीम. तो XYZ स्कीम है और कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है जो NABARD पूछता है. देन क्वेश्चंस कैन बी रिलेटिंग टू फीचर्स. मेनली क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फीचर्स. I believe कि majority of questions are based on features. For example, if there is प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, now please get into your head कि schemes के हमेशा short forms exam में आते हैं. There are no full forms given to you in the examination hall. So if it is written प्रधान मंत्री PMFBY, you should know what does it stands for. If it is written DNRLM, you should know what does it stands for. इसलिए हम भी यही शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हमेशा, सो दैट इट बिकम्स हैबिचुअल फॉर यू टू लर्न एंड टू रिकॉग्नाइज कि एक्चुअली if PMFBY लिखा है तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. सो फॉर एग्जाम्पल फीचर्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज आस्क्ड कि अगर प्रधानमंत्री बीमा योजना है तो खरीफ क्रॉप्स के लिए कितना परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इज पेड बाय फार्मर्स. तो फीचर्स पे क्वेश्चंस आते हैं. देन अपडेट्स. फॉर एग्जांपल हम बजट पढ़ेंगे, बजट से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर के प्रोविजंस हैं हम वो पढ़ेंगे. बजट्स में जो भी नई एग्रीकल्चर स्कीम्स आई हैं या जो भी स्कीम्स आई हैं, दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम्स. सो बजट एलोकेशन कितना हुआ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कीम्स का, एंड जो नई स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुई है उनके बारे में हर एक डिटेल इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर आवर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. समटाइम्स वी ऑल्सो गेट टू सी दिस questions कि match the followings are asked, schemes versus ministries. Schemes are given on the one side and ministries are given on the other hand, कि आपको मैच करना है which scheme is related to which ministry. Then full forms आपको पता होनी चाहिए. This I have addressed. Now you should make how you should prepare your notes and how you should study schemes. So I believe कि schemes क्योंकि बहुत ज़्यादा schemes हो जाती हैं and it is sometimes very very difficult कि हम schemes को पढ़ें. कुछ लोग ऐसे schemes को पढ़ते हैं कि वो लोग monthly cover करते हैं schemes को, कि monthly basis पे जो भी schemes न्यूज़ में है important है वो उस तरीके से cover करते हैं. But I believe कि जो तरीका I have approached और I have followed is covering schemes ministry wise, कि जो भी स्कीम्स मिनिस्ट्री वाइज इंपॉर्टेंट है हम वो स्कीम्स उस मिनिस्ट्री के अंदर करेंगे. एंड आई बिलीव कि इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है हमारा पोर्शन और हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं. ऑल्सो हमें मिनिस्ट्रीज याद रखने में मदद मिलती है. सो आप ऐसा कर सकते हैं कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स, प्लीज़ राइट अ मिनिस्ट्री नेम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड then just complete the scheme. And you should also leave some pages कि अगर वो scheme बाद में आती है, if there is another important update related to that scheme या फिर कुछ और scheme का important part है तो उसे वहीं की वहीं cover कर लिया जाए. But the good part is कि अभी हम क्योंकि बहुत later stages में है and exam बस आने ही वाला है कुछ टाइम में, तो बहुत ज़्यादा updates नहीं आएंगे और जो updates already आ चुके हैं वो हम cover कर ही लेंगे. सो आई बिलीव मिनिस्ट्री वाइज प्रिपेयर करना इज़ मोर ईजी एंड इट्स मोर ऑर्गेनाइज्ड. बट अगर आप चाहते हैं कि आपको मंथली स्कीम्स करना है या आप कर रहे हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं. आई एम नॉट टेलिंग कि आपको स्कीम्स एक पर्टिकुलर जगह से करनी है या आप यहीं से कीजिए या वहाँ से कीजिए, पर आप जैसे भी कर रहे हैं बस डू इट इन द राइट वे. आइदर यू आर डूइंग इट बाय योर सेल्फ और फ्रॉम एनी अदर मटेरियल, डजेंट मैटर. क्या जो फ़र्क पड़ता है वो ये है
कि यू शुड क्लियर द एग्जाम एंड यू शुड बी वेल वर्स्ड विद स्कीम्स वेरी नाइसली. नाउ जब आप स्कीम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू शुड प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स विद व्हाट इज़ द स्कीम नेम, व्हाट इज़ द लॉन्च ईयर, देन व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडिंग पैटर्न क्या है, व्हाट आर की फीचर्स एंड लेटेस्ट अपडेट क्या है स्कीम के बारे में. इतना सब आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सम स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती हैं, दे आर फॉर एवर इम्पॉर्टेंट टू स्टडी इवन इफ़ दे आर नॉट इन न्यूज़. फॉर एग्जाम्पल MG नरेगा, तो ये फॉर एवर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमको, फॉर एवर इंपॉर्टेंट स्कीम है जो हमको नाबार्ड के लिए पढ़ना है. सो वंस फॉर ऑल अगर आपने MG नरेगा लिखा है तो इन वन होल पेज आपके बारे में, इस स्कीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि MG नरेगा के बारे में हमने फर्स्ट पेज पे भी लिखा है और 6th पेज ऑफ नोट्स पे भी आप MG नरेगा ही लिख रहे हो. सो दैट शुडंट हैपन. पूरा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में आपको हर एक चीज़ को कंप्लीट करके स्कीम को प्रिपेयर करना है. नाउ देर आर सम इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ फॉर नाबार्ड जो आपको स्पेसिफिकली उस मिनिस्ट्री की सारी स्कीम्स, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, जो नई स्कीम्स है वो डेफिनेटली, अगर कोई स्कीम पे अपडेट आया है तो वो डेफिनेटली, और जो फॉर एवर इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो आपको करनी ही करनी है. फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर अस टू स्टडी फॉर नाबार्ड बिकॉज ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग फॉर एग्रीकल्चर. नाबार्ड पेपर इज़ ऑफ एग्रीकल्चर मेनली. सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी. तो इसे हम डिटेल में कवर करेंगे. फिर इसकी जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, बी इट PM किसान, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, E-NAM, सॉइल हेल्थ कार्ड या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो स्कीम्स इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो स्कीम्स न्यूज़ में नहीं है वो भी इसे हमें डिटेल में कवर करना होता है. देन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. अब ARD में RD इज़ रूरल डेवलपमेंट ओनली. रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी. तो रूरल पॉवर्टी एलिविएशन जो स्कीम्स है, हाउसिंग रिलेटेड स्कीम, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम जैसे MG नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस, ये सारी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड आई बिलीव कि आपको ये मिनिस्ट्री वाइज कवर करना चाहिए, तो इट विल बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड टू यू टू स्टडी. एंड अगर आप मिनिस्ट्री वाइज ऐसे कवर करेंगे सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो जो फाइनेंस स्कीम्स हैं, जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जैसे जन धन योजना या सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन स्कीम्स, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, तो ये स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड यू शुड नो अबाउट दी स्कीम्स टू. Then similarly Ministry of Food Processing Industry schemes. Then Ministry of Fisheries and Animal Husbandry is one of the most important ministry again, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्योंकि नाबार्ड ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज काइंड ऑफ स्कीम्स, तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. देन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पोषण अभियान, देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सक्षम आंगनवाड़ी, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं बजट्स में, एलोकेशन, all of that you should also know of these schemes. Then Ministry of Social Justice scheme जैसे कि स्माइल, स्टैंड अप इंडिया एक्सेट्रा. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मिशन इंद्रधनुष. देन जल शक्ति मिनिस्ट्री स्कीम जैसे जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अटल भूजल योजना. देन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल केंद्र, स्किल इंडिया मिशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. देन अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम योगी मानधन, ई श्रम पोर्टल एक्सेट्रा. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कीम जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील, PM पोषण एक्सेट्रा. देन सम सिलेक्टिव स्टडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जिसमें कुछ स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, कुछ मिशंस इंपॉर्टेंट है जैसे ग्रीन इंडिया मिशन, कैंपा, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम. तो सिलेक्टिवली यू ऑल्सो हैव टू स्टडी ऑन दिस पार्ट. देन मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ऑब्वियसली प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्फूर्ति, देन क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट ऑफ MSME. सो ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर अस टू स्टडी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ MSME. देन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वन धन योजना, ट्राइफेड इनिशिएटिव्स, एकलव्य मॉडल schools. And then Ministry of Minority Affairs, नई रोशनी, नई मंजिल, PM विकास वगैरह से लास्ट ईयर भी स्कीम्स पूछी गई थी. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी. मोर ओवर जब बजट में कुछ स्कीम्स आती हैं जैसे PM विकास वॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस, सो इट बिकम्स वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी. देन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स स्कीम, आवास योजना, NULM, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिशन एंड स्कीम्स सच एज PM कुसुम्स, नेशनल सोलार मिशंस. तो ये सारी स्कीम्स
हमें कवर करनी है। अगर मिनिस्ट्री वाइज कवर करेंगे इट बिकम्स मोर ईजी एंड ऑर्गेनाइज फॉर अस टू स्टडी। एंड ऑल्सो जब आप किसी मिनिस्ट्री की स्कीम्स कवर कर रहे हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सर्च एंड ऑल्सो राइट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन बजट, बजट के एलोकेशंस क्या रहा है, बजट में कोई स्कीम के बारे में बोला है क्या, एवरीथिंग एवरी डिटेल शॉर्ट डिटेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताऊँ, सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन NABARD दैट सेज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग अ फ्लैगशिप स्कीम कॉल्ड एज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सिंस 2015। यानी 2015 में जो स्कीम लॉन्च हुई थी वो क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उसका वर्जन 4.0 वॉज रिलीज्ड। सो इसलिए अगर कोई स्कीम का अपडेटेड पार्ट आया है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें कवर करना। सो क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 रिलीज़ हुआ है इसलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट हुई। एंड क्वेश्चन वॉज आस्क्ड कि ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज इज व्हाट। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन फीचर्स। तो फीचर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी। तो ये फीचर के बारे में पूछा गया है कि क्या फीचर है, क्या ड्यूरेशन है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज का। हेयर आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑन स्कीम, आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग आंसर्स। जब हम स्कीम्स पढ़ेंगे डिटेल में तब हम स्कीम्स को अच्छे से कवर करेंगे। नाउ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन था कि इस मिशन के अंदर जो कोल्ड स्टोरेजेस है उनको सैंक्शन किया गया है बाय स्टेट एंड सेंट्रल लेवल कमिटीज़। नाउ इट इज़ आस्किंग कि कितना एलिजिबल कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है फॉर असिस्टेंस अंडर दिस मिशन। सो ये भी फीचर्स पे पूछा गया है। सो यू शुड नो फीचर्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट स्कीम्स। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, कुछ भी PIB में इंपॉर्टेंट आया है स्कीम से रिलेटेड या कोई भी नई स्कीम लॉन्च हुई है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहना इंपॉर्टेंट है। जब हम स्कीम्स कवर करेंगे हम ये सारा फॉर्मेट को पूरा फॉलो करके स्कीम्स को कवर करेंगे सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कीम्स का वी आर नॉट मिसिंग ऑन दैट पार्ट एंड वी आर कवरिंग द स्कीम होलिस्टिकली। Similarly, if there was a question that was asked on Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and it was asking कि which of the following is not a key target under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So NABARD is trying to know all the features from you. तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया है it is trying to know कि आपको पूरी डिटेल्स पता होना चाहिए। You should know कि इस स्कीम में क्या क्या टारगेट है। You should know about एक्वाकल्चर प्रोडक्शन का क्या टारगेट है, रेवेन्यूज़ का क्या टारगेट है, फिशरीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमें कितने करने हैं एंड व्हाट इज़ द टोटल आउटले। तो वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है ऑल द की फैक्चुअल डिटेल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंपॉर्टेंट स्कीम्स। सो यू शुड नो दैट पार्ट टू। नाउ सिमिलरली PM विकास के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वर सब्स्यूम्ड अंडर PM विकास। नाउ इट इज़ आस्किंग कि अगर 4-5 स्कीम्स हैं तो 4-5 स्कीम्स को सब्स्यूम करके एक स्कीम में सब्स्यूम्ड किया गया है। सो इट इज़ आस्किंग दैट टू। तो मतलब ये है कि लेटेस्ट अपडेट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई स्कीम में लेटेस्ट अपडेट हुए हैं सो क्वेश्चन बिकम इम्पॉर्टेंट ऑन दैट पार्ट टू। And also it was announced in Union Budget of 23-24. So it is important. So latest schemes you have to cover completely. Now this was a question on Pradhan Mantri Janjati Unnat Gram Abhiyan because it was announced during budget 24-25. मतलब न्यू स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दोज न्यू स्कीम्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आपको पूरा फैक्चुअल डिटेल्स भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ऑल्सो आस्किंग यू फैक्चुअल डिटेल्स सच एज 75,000 villages are proposed, benefit will be provided to 5 crore tribal people। मीन्स यू शुड नो डिटेल्स सच एज कि आपकी बेनिफिट्स कितने करोड़ ट्राइबल पीपल को दिया गया है या कितने विलेजेस प्रपोज्ड हैं। सो सच डिटेल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया उसका समरी ये है कि बजट अनाउंसमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NABARD is always test us from schemes that are directly announced in union budget. So वो बहुत high probable हो जाती हैं schemes. We will cover all those schemes. Then tribal development link, अगर कोई project है, कोई scheme है जिसकी tribal development link है, it also becomes very important. Financial inclusion and rural development की schemes are very important. कोई भी fresh scheme है तो वो बहुत ज़्यादा important हो जाती है and कोई भी update आया है पुरानी scheme पे वो important है and कुछ evergreen schemes जो हैं जैसे MG नरेगा या फिर आवास योजना या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की या PM किसान टाइप स्कीम्स वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में यू शुड नो एवरीथिंग। सो दिस इज़ ऑल दैट आई हैव टू
टेल यू अबाउट स्कीम्स की कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो स्कीम्स कैसे पूछी जा सकती हैं। और क्योंकि स्कीम्स का पोर्शन काफ़ी वाइड पोर्शन है तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हाउ शुड वी कवर स्कीम्स। सो हेयर इज़ माई स्ट्रैटेजी कि हम स्कीम्स कवर करेंगे स्लोली एंड स्टेडीली, हम सारी स्कीम्स कवर करेंगे, बट माई फोकस इज़ टू गिव यू एन ऑर्गेनाइज फॉर्मेट। जब हम स्कीम्स कवर कर रहे हैं वी विल कवर स्कीम्स मिनिस्ट्री वाइज सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज। जो स्कीम्स हम पहले कवर कर चुके हैं उसका आई विल प्रोवाइड यू लिंक मिनिस्ट्री वाइज सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू ट्रैक दो स्कीम्स टू। एंड देन वी विल फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड देन जो भी एग्रीकल्चर स्कीम्स की लिस्ट है वी विल डू दैट, जो भी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड जो भी फीचर्स पूछे जाते हैं अलॉटमेंट, एलोकेशंस, फंडिंग, एवरीथिंग, इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, वी विल स्टडी ऑल ऑफ दैट। अगर बजटरी में कुछ एलोकेशन हुआ है, नई स्कीम्स आई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वी विल ऑल्सो कवर ऑल ऑफ दैट। Now that's it for this class. I hope you liked this class. I hope you liked what I told you about schemes. If you agree, if you are liking it, please tell me, please share your thoughts with me and I will get to know कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में. Whatever I have told, are you liking that? Are you agreeing with me? You can also disagree. There is total democracy. आप बता सकते हैं आपको क्या पसंद नहीं आया. एंड यू कैन ऑल्सो गिव मी सजेशंस कि ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है. सो आई एम ऑल्सो ओपन टू ऑल ऑफ दैट कॉमेंट्स एंड प्लीज़ टेल मी एंड लेट्स लर्न टुगेदर. प्लीज़ शेयर योर ओपिनियंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.